Was it blood and iron policy of Bismarck or simply iron and coal which made the unification of Germany a reality? Discuss. So अगर हम इस क्वेश्चन को देखें स्पेसिफिकली तो डिबेट है ये एक, ठीक है. Bismarck says it is blood and iron. Naturally, that was a speech which was given by him. But the word coal and iron, this has been used by John Maynard Keynes, okay, one of the most famous economists of the 20th century. Let us see the introduction. John Maynard Keynes commented that unification of Germany was due to coal and iron, whereas Prussian German Chancellor emphasized iron and blood policy. So directly hitting the bullseye. This is how introduction can be written in debate specific questions. Then the topper has mentioned about Germany was unified in 1871 after the Battle of Sedan. He proclaimed Russia monarch as the emperor of unified Germany in 1871 in the Hall of Mirrors, Versailles. तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पर पूरा कंटेक्स्ट पिक करके लिखा है, और ऐसा लिखोगे तो बहुत बढ़िया नंबर लाने वाले हैं, ठीक है. सो मेथड्स अडॉप्टेड, मेंशनिंग की पर्सनालिटीज एज वेल एज अलॉन्ग विद द इवेंट्स. एंड यहाँ पे द ओपनिंग ऑफ द डिबेट इज शोइंग who has specifically said this. So wherever you know this, it becomes an added power for you, and this could be used in the introduction very easily. Then if I see the second part, John Maynard Keynes के बारे में लिखना है. Then the topper has wrote about Zollverein in 1819. By 1834 all German principalities became a part of it except Austria, and how it led to economic integration and prepared the background for the military base which was to be created by Bismarck in the long run. So economic integration के positive लिख दी. Then iron and blood policy के बारे में बात किया कि what was this that specifically mentioned by Bismarck, that the greatest questions of the day are not going to be solved by speeches and majority, they are going to be solved by blood and iron. तो वो उन्होंने पूरा statement यहाँ पे pick करके लिख दिया, and that is something which is the beauty of it. Okay, then the mentioning of the 3 specific wars, मिलिट्री रिफॉर्म्स, डिप्लोमेसी रिफॉर्म्स, वो सारा इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पे. स्टेटमेंट में फिर ईयर में फिर गलती कर रखी है. होल्स्टेन एंड शेल्सविक 1764, वो 1863 से वहाँ पहुँच गया, 64 से 1766 यहाँ पे सही हो गया 1871. तो डेट्स में कभी कभार मैंने देखा है कि टॉपर्स भी गलतियाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ को आप ध्यान रखना दैट आप ऐसा ट्राई मत करना. कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी को वो अफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ दे हैव रिटन आंसर. अगर अच्छा नहीं लिखा होगा, डेट भी गलत लिखोगे तो ये तो पागल ही है, इसको तो आता ही नहीं होगा. दिस इज हाउ द ओपिनियन आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. बट बाकी सब अच्छा तो होंगे, चलो ठीक, गलती से मिस्टेक होगी, ठीक है. सो दिस इज हाउ द लाइफ इज, एंड वी शुडंट टेक चांसेस इन द एग्जाम हॉल. बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. बट कंक्लूजन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज नेचुरली दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं था कि एक इंपॉर्टेंट था. German unification was the result of combination of 2 factors, this and this. Iron Condé policy prepared the material ground on which the Bismarck's ambition of Prussianization of Germany was achieved. So this is something which is very well. You should understand the analysis also. Like coal and iron, it was working from 1819 onwards. By 1834, all the German states were part of Zollverein, but it did not lead to unification in 1848. Where the liberals, when they were trying to create a constitution and offering it to the king of Prussia, he rejected it. Then there was a convention of Olmütz of 1851, which also specifically prohibited that Prussia is not going to lead the unification of Germany. So just coal and iron couldn't do it. Similar is the case with blood and iron. Blood and iron is not going to work unless you have coal and iron. See the case of Italy. Okay, so Italy tried to fight on its own, failed miserably, and eventually they sought the help of France, Britain, and later on Prussia, and that's how they got unified. So this is something which was not required to be done by Prussia because they were having coal and iron. तो ये एनालिसिस आप जरूर लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद में, बिकॉज पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है. दिस इज समथिंग विच कुड बी रिटन हेयर और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. Hi, so welcome to Prep Career. Today I'm going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time,
उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें। दिस इज़ वेयर डॉन कम्स इन। डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पर रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए, बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते। कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते। देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर। इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th, ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे। मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि शेड्यूल में क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो, ठीक है। एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स। दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो। सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है। अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू विल राइट फ्यू आंसर्स। हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे, एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है। हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे। जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो। और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस, ठीक है। तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है, फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं। हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंडआउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें। दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग, प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे। देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना, यू विल गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल। देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव, पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे। दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे। 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेल्युएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरा तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम बहुत बच्चों को हिस्टोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं, एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया कि रफली 21 दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं। तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं GS में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है, और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड अ फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए।
ओके उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस, एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself, you will be able to finish off this batch. Alright, so all the very best. Thank you so much. इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।